ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਬਜਟ ਆਵੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਔਰ ਚਰਚਾ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੀ ਖੂਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਗਾਇਬ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਮੰਗੀ ਸੀ, 5 ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ CM ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਦੀ। ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, MSP ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਪਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸੀ ਹੁਣੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ CM ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਜੋ ਗਾਇਬ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗਾਇਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ था। अब देश के बजट से पंजाब गायब है। ये समझ नहीं आती कौन सा बदला ले रहे हैं ये पंजाबियों से। हमने, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, हमने 1000 करोड़ रुपए की मांग की थी कि BSF उनको अपग्रेड करने के लिए, मॉडर्नाइजेशन करने के लिए बॉर्डर की, क्योंकि ड्रोन वगैरह बहुत आते हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च करने के लिए, उसका नाम भी नहीं लिया गया। हमने प्री बजट जो डिमांड्स मांगते हैं राज्यों से, हमने उसमें मेंशन किया था कि वंदे भारत श्री अमृतसर साहब से और बठिंडा से जो है दिल्ली के लिए, उसका नाम भी नहीं लिया गया। जब मैं बतौर मेंबर पार्लियामेंट वहां लोकसभा में था तो मैंने एक आइडिया दिया था जो कि रेलवे मंत्री साहब ने एक्सेप्ट भी किया था कि रिलीजियस टूरिज्म के लिए बहुत एक 5 तख्तों को जोड़ने वाली एक ट्रेन चले, जो अभी तो जो श्री अमृतसर से नांदेड़ साहब जाती है उसकी 2-2 महीने की बुकिंग है। अगर आप श्री अकाल तख्त साहब से तख्त श्री केसगढ़ साहब तक, अगला पड़ाव जो है तख्त श्री पटना साहब तक, उससे अगला पड़ाव तख्त श्री हजूर साहब नांदेड़, उससे अगला पड़ाव जो है वो तलवंडी साहबों का हो और वापस फिर अकाल तख्त साहब। तो ये ऐसी ट्रेन जिसमें लाखों जो NRIs भी हैं वो भी 5 तख्तों के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन उनको बहुत दिक्कत होती है, कोई नामो निशान नहीं है उसका। और कोई MSP, नई फसल पे कोई MSP नहीं दी गई है। हमने कहा था कि 1500 रुपये पर एकड़ जो पराली जलाने की समस्या है उसमें 1500 रुपये पर एकड़ सेंटर दे दे, बाकी हम दे देंगे, लेकिन उसका भी नाम नहीं लिया गया। किसानों को तो मतलब अपने हाल पे छोड़ दिया गया, किस्मत पे छोड़ दिया गया। और हम कॉलेज बना रहे हैं, 16 नए मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। इन्होंने कहा है कि जी कि नर्सिंग कॉलेज खोलेंगे, कब से खोलेंगे, कब से वो चल रहे होंगे, कोई उसमें डिटेल नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए काफी सहूलतें दी गई हैं, अच्छी बात है, लेकिन शेड्यूल कास्ट के लिए कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है कि जो शेड्यूल कास्ट हैं, SC हैं, BC हैं, जो पिछड़े वर्ग से हैं,
उनको ऊपर उठाने के लिए, उनको उनका जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए कोई पैकेज हो, तो सिर्फ कागज में लिपटा हुआ एक लिखती एक स्क्रिप्ट थी। इससे पहले भी बजट में पेश कहा गया था आने वाले 2023 में 2024 में हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। कहां दुगनी की है आय उनकी? एमएसपी के नाम से तो ये सरकार, मेरे ख्याल में सेंटर सरकार जो है चिढ़ती है। तो किसानों से एक किस्म का बदला लिया गया है, क्योंकि उन्होंने आंदोलन किया था, इतना बड़ा आंदोलन किया था, तो किसानों के बारे में कुछ नहीं बोला गया, कोई एमएसपी नहीं दी गई। और पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, हमें बहुत चैलेंजेस हैं। हमारी पुलिस को अपग्रेड करने के लिए, हमारे बॉर्डर को अपग्रेड करने के लिए हमने एक सजेशन दिया था कि जो तार के पार 3-3, 4-4 किलोमीटर तार के पार जमीन है, क्यों ना तार को हम 200 मीटर तक ले जाएं। इंटरनेशनल लॉ है कि 150 मीटर तक आप लेके जा सकते हो, लेकिन हम कहते हैं 200 मीटर तक ही ले जाओ, ताकि जो तार के पार जिनकी जमीन है वो किसान जो हैं उनको आई कार्ड दिखा के, और बीएसएफ का भी टाइम उनकी फिस्किंग में, तलाशी लेने में जाता है, बीएसएफ खुद जाती है खेती करवाने के लिए, तो कि 200 मीटर तक तार ले जाएं तो बहुत सी जमीन जो है वो तार से इधर आ जाएगी, बहुत किसानों को फायदा हो जाएगा। उसका कोई मेंशन नहीं किया गया। तो मुझे तो लगता है ये कोई बदला ले रहे हैं पंजाब से, लेकिन पंजाब जो है वो एक ऐसी स्टेट है जिसने 90% कुर्बानियां देश को आज़ाद करवाने में और अभी भी देश की आज़ादी को कायम रखने में हम कुर्बानियां दे रहे हैं। तो ऐसा पंजाब के साथ अन्याय जो है वो अच्छा नहीं है। और हम जब डिमांड फॉर ग्रांट्स बजट पे डिबेट चलेगी तो हमारे जो साथी सांसद हैं राज्यसभा में, हम ये बातें माननीय वित्त मंत्री जी को याद कराएंगे कि पंजाब को आप देश का हिस्सा मानो, पंजाब को देश में से मनफी नहीं कर सकते, क्योंकि पंजाबी हैं जो पूरे देश को खाना भी खिलाते हैं, पंजाबी हैं जिन्होंने हरा इनकलाब ला के देश को अनाज के मामले में जो आत्मनिर्भर बनाया था। तो अब उनको ऐसे छोड़ना लावारिस छोड़। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ।